Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss MH Law CET most expected question from the constitutional law in the legal reasoning part of the paper. So guys, here we are going to discuss कि बाबा constitutional law में से कौन से probable most expected questions है जो कि आपको exams में देखने मिलेंगे. You have to focus on that. You have to concentrate on that questions. Chalo, moving ahead, here we have a social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. You can just join Telegram channel and a WhatsApp group. Also don't forget to subscribe our YouTube channel and like this video and share with your friends. So here you can join self-study preparation course. You can also take full course or a sectional course, and you can also take a mock test. You can buy books and ebooks. For this, you have to visit manualedu.com/lawintrans, and also you can connect with us 8828581455. Moving ahead to the first question, guys. First question is what is it is about a principle and fact. So लीगल रीजनिंग है. यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द प्रिंसिपल गाइज, व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी हियर. स्ट्रेटेजी इज यूज टू लाइक आपको प्रिंसिपल से स्टिक ऑफ रहना है. यू हैव टू स्टिक टू द प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल में बोला है बस उतना ही सोचो, उतना ही आंसर करो. दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज अ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन. सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द प्रिंसिपल. यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है. देन Constitution also provides that these rights cannot be taken away by state even by the law. ये राइट जो है वो स्टेट भी यहाँ से रिलिंक्विश नहीं कर सकते. मतलब आपके पास से आपकी जो राइट्स है वो स्टेट भी रिलिंक्विश नहीं कर सकता, एबॉलिश नहीं कर सकता. also using law भी उसको आपसे रिलिंक्विश नहीं कर सकता. For violation of this, the person adversely affected by law may approach the High Court or Supreme Court for issuance of appropriate writ. So guys, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे प्रिंसिपल में 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है. दूसरा बोला जा रहा है स्टेट जो है विद यूजिंग अ लॉ ऑल्सो कांट टेक ऑल दीज राइट्स फ्रॉम योर साइड. लाइक आपसे वो ये राइट्स ले नहीं सकते, रिलिंक्विश नहीं कर सकते, और ये वियोलेट भी नहीं कर सकते. आपके राइट्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू हैव अ complete claim and right over your fundamental rights, so you can claim that. Now what happens if that violates, ये सारे violate होते हैं तो क्या करना है. In that case you can simply go to the High Court and Supreme Court. but how, किस प्रोविजन के अंडर और किस लॉ के अंडर आप वहां पे जाओगे. सो दैट वुड बी दी इशुएंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रीट. रीट करके एक सेक्शन होता है. रीट के अंडर आप अपने अगर फंडामेंटल राइट्स आपके अगर कहीं पर भी वियोलेट होते हैं, कहीं पर भी उनके ऊपर अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रीट आर्टिकल्स टू claim your fundamental rights. One of these rights includes a freedom to form association. One of these right is what? Freedom to form association. That implies the right to join an association or not to join such an association. यहाँ पे क्या बोला है कि आपको जो है एक fundamental right, and one of the fundamental right is what? Freedom to form an association, and that implies what? Right to join an association and right not to join सच है ना एसोसिएशन. ज्वाइन करने की भी आपके पास राइट्स है एंड ना करने के भी आपके पास राइट्स अवेलेबल है. ओके, नाउ मूविंग टू द फैक्ट्स. व्हाट एग्जैक्टली द फैक्ट्स. फैक्ट्स क्या दिए हुए. ओइंग टू सम इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय XATU, मतलब ये ZATU करके एक कंपनी है. वन ऑफ द सेवरल ट्रेड यूनियंस इन AB Chemicals Private Limited, the company issued a circular to all its employees that as far as possible the employees may associate with ZATU. Now is an employee of a AB company. Acha, Navin is an employee of the AB company and the current general secretary of ZATU. Aggrieved by this circular which affected the fundamental rights of his and other members of union, approaches the High Court of a state for relief, identify most reasonable legal proposition. Now what exactly the story behind this. यहाँ पे एक ZATU करके कंपनी है, XATU. अब ये ZATU कंपनी में one of the several trade unions in the AB Chemicals Private Limited, क्या बोला है कि some industrial disturbance created by the ZATU करके कोई यूनियन होगा. Now ये यूनियन कौन सा क्या काम करता है. In the AB Chemicals Limited, the company issued a circular to all its employees. अब कुछ डिस्टर्बेंसेस ZATU
जो यूनियन है इन्होंने जो फैलाया उस वजह से एबी केमिकल्स में क्या हुआ कि एबी केमिकल्स कंपनी ने क्या कर दिया, एक सर्कुलर निकाल लिया। इस सर्कुलर के अंडर वो बोलते हैं ऑल इट्स एम्प्लॉइज दैट एज फार एज पॉसिबल द एम्प्लॉइज मे डिसएसोसिएट विथ Z2, मतलब यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दे मे डिसएसोसिएट विथ Z2. Navin is an employee of AB Chemicals and a current general secretary of Z2. अब नवीन जो है is also employee of the AB Chemicals and also he is a part of Z2 union. Now what happens is उसका जो ये right है कि वो यूनियन फॉर्म कर सकता है एंड किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकता है। गाइज काइंडली नोट दिस कि यूनियन इज एन एसोसिएशन, यूनियन इज एन आल्सो एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल, सो ही हैज कंप्लीट फंडामेंटल राइट टू ज्वाइन दिस और नॉट ज्वाइन दिस, तो वो उसके ऊपर है। सो ही हैज दैट फंडामेंटल राइट ओवर हियर। सो कंपनी बोलती है कि आप एक तो कंपनी को छोड़ दो या फिर इस डिसएसोसिएट, मतलब कंपनी को छोड़ दो ऐसा तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, बट दे आर सेइंग एक्सप्रेसली व्हाट कि डिसएसोसिएटेड विद द Z2. Now Navin is an employee of the AB Chemical and a current general secretary of Z2 agreed by this article. अब यहाँ पे तो नवीन का जो फंडामेंटल राइट है वो वहाँ तो डिस्क्रिमिनेट हुआ है, तो नाउ ही इज अग्रीड बाय द सर्कुलर एंड विच अफेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ हिज एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूनियन अप्रोचेस द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। नाउ व्हाट decision में like what legal proposition and what should be the right legal what should be the right legal remedy here available for the Navin, we have to find out that. Option A says circular issued by company amounts to a law in a constitutional sense and hence the High Court can issue a writ as pleaded by Navin. Now guys see, even though if there is a law for the union, even though if there is any other provision in the law, that should be a morally correct, that should be a lawfully correct, that should be a lawfully legal. But now in this type of questions you have to stick to the principles. What exactly the principle said? Principle क्या बोलता है कि issuance of a writ is a fundamental right over here, including that remedy also available here. Now what happens is यहाँ पे प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही बोला है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन दिस इज अ फंडामेंटल राइट, यू हैव दैट राइट इफ, एंड उस राइट में भी क्या अवेलेबल है, ज्वाइंट एन एसोसिएशन एंड लिव दैट एसोसिएशन, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी आपके ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पर तो सिर्फ एसोसिएशन की बात की जा रही है और फ्रीडम की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई भी बात नहीं की, किसी भी लॉ के बारे में और बात नहीं हो रही है, तो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सो दैट मीन्स ए को तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज ए इज सेइंग व्हाट अमाउंट टू लॉ, बट इसके बारे में तो प्रिंसिपल में कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। सो व्हाई वी आर गोना कंसीडर दिस। नाउ कम टू द बी। The circular interferes with the freedom guaranteed by the constitution and hence the high court can issue an appropriate writ. देखो यहाँ पे क्या बोला है, circular interferes with the freedom of guaranteed by constitution and hence the high court can issue a writ. Okay, this would be the probable answer. Come to the option C. The prohibition against any imposition of restriction against the fundamental right is not applicable to anybody other than state and hence Navin will not get any relief from the high court. देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी इम्पोजिशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट is not applicable to anybody other than the state and hence Navin will not get any relief from the high court. Guys, this would not be the correct answer because यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि prohibition against imposition of any restriction against the fundamental right is not applicable to anybody other than a state, hence नवीन विल नॉट गेट एनी रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट। बट यहाँ पे गाइज नवीन के बारे में ऐसा बोलना कि देखो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, किसी भी रेस्ट्रिक्शन को प्रोहिबिट करना मतलब रोक देना अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट इज नॉट अप्लीकेबल टू एनीबडी अदर देन द स्टेट, मतलब स्टेट के अलावा ये किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो प्रोहिबिशन लगाए। किस पर प्रोहिबिशन लगाएंगे, ऑन द इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एक रेस्ट्रिक्शन लगाना मतलब किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, इस रेस्ट्रिक्शन पे इस रेस्ट्रिक्शन के रूल को प्रोहिबिट कर देना, निकाल देना, एबॉलिश कर देना, ये राइट सिर्फ स्टेट के पास है और किसी के पास नहीं है एंड फॉर दैट रीजन नवीन को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। बट गाइज डू वी
consider this point? No, because the reason behind this is कि prohibition against the any imposition of restriction बोलना, यहाँ पे नवीन ने तो ऐसा कोई भी prohibition नहीं लगाया, simply नवीन का खुद का ही right यहाँ पर discriminate हुआ है, वहीं violate हुआ है. So simply Navin is the accused here. Navin is the victim here. Navin is the victim here, not accused. So now this would get eliminated. Option D says the company circular is illegal and has to quashed by court. यहाँ पे quashed by court ऐसा principle में कुछ भी नहीं बोला है कि वो जो ऑर्डर है या फिर जो वो सर्कुलर है वो क्वैश हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पर प्रिंसिपल में नहीं बोला है. एंड अकॉर्डिंगली डी विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड. ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. Okay, moving to the next question, guys. Now, here is a legal principle given. The doctrine of basic structure in constitutional jurisprudence means that the Constitution of India has a certain basic features that cannot be taken away through amendments by the Parliament. The power of judicial review is a part of a basic structure and helps the constitutional courts to determine whether an amendment is against the basic structure or not. यहाँ पर बोला है, यहाँ पे दो चीजें बात की गई, दो चीजों का डिस्कशन किया गया. बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंडली जुडिशियल रिव्यू. पर्पस बिहाइंड अ जुडिशियल रिव्यू उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज द मेन सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से, राइट. एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू. व्हाट हैपेंस इज, ये जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, तो सिंपली कहीं पर भी अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जुडिशियल रिव्यू की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं, इज दैट अमेंडमेंट इट इज विद द कंप्लायंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. दैट डिसाइड्स व्हाट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड्स करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जुडिशियल रिव्यू. दिस ओनली द प्रिंसिपल सेइंग. नाउ कम टू द फैक्ट. व्हाट एग्जैक्टली द फैक्ट सिचुएशन? Parliament proposes an amendment limit the power of appeal against a conviction for the offence of sedition to be exercised only by the Supreme Court of India. Now what happens is Parliament ने क्या कर दिया, Parliament proposes an amendment, limit the power, एक amendment निकाला जिसमें कि एक पावर जो दी गई है, एक अपील, पावर ऑफ अपील जो दी गई है अगेंस्ट द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ऑफ अ सेडिशन. ये ऑफेंस ऑफ अ सेडिशन जो है उसके ऊपर जो अपील की जाएगी, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है ऑफेंस ऑफ सेडिशन का और उसके ऊपर जो अपील की जाएगी तो उसकी जो लिमिट है ना, वो जो पावर जो है ना, लिमिट जो दी गई है, वो पावर जो दी गई है ना उसको लिमिट कर दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया. अब वो कितना किया, क्या किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. बस फैक्चुअल सिचुएशन जितना बताया बस उतना ही सोचो, उसके बियॉन्ड जाकर मत सोचना कितना रेस्ट्रिक्शन, क्या रेस्ट्रिक्शन, वो हमें नहीं सोचना है. बस जितना फैक्ट पता है उसके ऊपर डिसीजन देना है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू लीगल प्रिंसिपल स्टेटेड अबव. चलो ऑप्शन ए में आते हैं. द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो अगेंस्ट है ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. This would be the possible answer, but before that we have to look for other options. Now option B says the proposed amendment is unconnected to doctrine of basic structure. Unconnected to doctrine of basic structure बोलना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या किया है, अमेंडमेंट निकाला है, लिमिट द पावर ऑफ अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द सेडिशन. ठीक है, तो दिस इज नॉट अनकनेक्टेड, दिस वुड बी द कनेक्टेड. तो चलो इसको तो एलिमिनेट करते हैं. ऑप्शन सी सेज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड एंड स्ट्रक डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स. देखो यहाँ पे रिव्यू की बात की, ये अगेंस्ट है ये बोलना, ये अभी ओपिनियन रह गया, प्रोबेबल आंसर था, बट अभी ये रिव्यू का ऑप्शन मिलने की वजह से जो ऊपर का जो ऑप्शन है ना वो एक ओपिनियन बन जाता है कि वी आर जस्ट सेइंग दैट कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. दैट इज ओके, वी नोज दैट, बट नेक्स्ट व्हाट, देयर शुड बी एनीथिंग रेमेडी. कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए, कुछ तो रिलीफ होना चाहिए उसके बिहाइंड, कुछ तो उसके अगेंस्ट एक्शन होनी चाहिए. दैट शुड बी अ लीगल एक्शन. तो यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ ओपिनियन दिया है. ऑन दैट बेसिस वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. चलो coming to the next option, option C, the proposed amendment can reviewed and struck down by constitutional court. This would be now the possible answer. Coming to the option D, the proposed amendment is beyond the power of parliament. No, this would not be the right. यहाँ पे beyond the parliament, power of the parliament बोलना गलत है क्योंकि इसके बारे में पहले तो प्रिंसिपल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते. एंड दैट्स द रीजन ऑप्शन C should be your correct answer. चलो, now next,
Legal principle, Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution of India states that no person accused of any offence, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. मतलब यहाँ पे ये बोला है कि Constitution, Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution says that कि कोई भी person जो अक्यूज्ड है ऑफ एनी ऑफेंसेस, किसी भी ऑफेंस का वो अक्यूज्ड है, तो वो उसको कभी भी कंपेल्ड नहीं किया जा सकता. बी कंपेल्ड मतलब उसको फोर्सफुली या उसको कन्विंस करना टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ कोई विटनेस नहीं हो सकता. ऐसा सीधा सीधा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 बोलता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कम टू द फैक्चुअल सिचुएशन. Ubaid refuses to give a sample of his blood after he is stopped by police for driving over the speed limit. अब यहाँ पे बोला गया है उबैद ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू गिव अ सैंपल ऑफ हिज ब्लड आफ्टर ही इज स्टॉप्ड बाय पुलिस फॉर ड्राइविंग ओवर द स्पीड लिमिट. मतलब स्पीड लिमिट के बाहर वो ड्राइव कर रहा था कार को, तो उसको पुलिस ने रोक लिया एंड दे आस्क्ड फॉर अ ब्लड सैंपल, सो ही रिफ्यूज्ड इट. Now the police suspect him to be driving under the influence of alcohol, which is prohibited under the law. Okay. Next is, which of the following statement is the most appropriate in relation to legal principles stated above? Option A says, Ubaid is protected by Article 20 sub Article 3 in his refusal to give a blood sample. Okay, this would be the possible answer. आगे जाते हैं. Ubaid is not protected by Article 20 sub Article 3 as he was अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. ना गाइज यहाँ पर सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया, कंक्लूड कर दिया कि ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. इज दैट एनी फैक्ट, इज देयर एनी फैक्ट जो कि ये डिसाइड कर पाओ कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था? ये डिसाइड नहीं है, ये डिसाइडेड पॉइंट नहीं है. सो वी कांट से दैट कि बी शुड बी योर राइट आंसर. नाउ सी यहाँ पर Ubaid is not protected by Article 20 sub Article 3 in his refusal to give a blood sample since he is not accused of any offence yet. देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, he is not accused of any offence yet. मतलब क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल में पहले ही बोला ना कि no person accused of any offence shall be compelled. मतलब उसके ऊपर ऑफेंस तो प्रूव हो तभी तो वो अक्यूज्ड होगा. अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस ही अभी तक उसके ऊपर प्रूव्ड नहीं है, दे आर जस्ट ऑफ सस्पेक्ट, they are just of suspected opinion that he is under the influence of alcohol and he is driving. बट वो तो एक सस्पेक्ट है ना, वो तो सस्पेक्ट का एक ओपिनियन है, सस्पेक्टेड ओपिनियन है, बट दैट शुड नॉट बी द ऑफेंस, दैट शुड नॉट बी द कंसिडर एज अ कंक्लूजन, दैट शुड नॉट बी द डिसीजन, राइट? डिसिसिव फैक्टर नहीं होगा वो. सो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर. नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट कि ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट आंसर और सी वुड बी अ करेक्ट आंसर. इफ यू लुक एट द ऑप्शन ए, प्रीवियसली हम लोगों ने जैसे देखा था वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इट जस्ट एन ओपिनियन वेयर वी आर सेइंग कि बाबा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 जो है इन हिज रिफ्यूजल टू गिव अ ब्लड सैंपल प्रोटेक्टेड. अब ये प्रोटेक्टेड है बोलना ये भी गलत हो गया, प्रोटेक्टेड है बोलना गलत हो गया क्योंकि ही इज नॉट अक्यूज्ड अगेन. देखो वो अक्यूज्ड भी नहीं है तो ये प्रोटेक्ट कैसे होगा, खुद अक्यूज्ड भी तो नहीं है वो. सो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड. चलो ऑप्शन डी देखते हैं. रिफ्यूजल टू गिव अ ब्लड सैंपल इज अ क्राइम एंड उबैद मस्ट बी पनिश्ड फॉर द सेम. सी यहाँ पर ये क्राइम है ऐसा तो प्रिंसिपल में नहीं बोला ना, प्रिंसिपल ऐसा तो स्टेट ही नहीं करता कि भाई ये क्राइम है करके, तो ये तो होगा ही नहीं. प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे जो लीगल प्रिंसिपल दिया. अब आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 जो बोलता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की अलग बात, बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हमें उतना ही पता है. वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली दैट, उसके बारे में नहीं सोचना है. नाउ ऑप्शन डी गेट एलिमिनेट, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. So this is how you have to follow the procedure and this is how you have to solve the questions. Okay guys, I hope you are getting some ideas, strategy and somewhere एक simple idea जो मिलती है. अगर guys ध्यान रखो कि यहाँ पर जो principles है ना वो principles important है, उन principles को आपको go through तो करना होगा because ये language समझना important होता है. And अगर आप ये समझोगे, इसको revise करोगे, then that would help you to solve the question in the exam. ये principle को read करना and imply करना is the crux. और इस crux को समझने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी. Okay, so now moving ahead. So guys, before moving, please comment in the comment box कि किस तरीके से आपको सेशन कैसा लगा and don't forget to like the video. चलो, legal principle. One of the principle of the natural justice states that no person shall be judged in his own cause. एक कोई भी पर्सन अपने खुद के कॉज में ही जज नहीं बन सकता. मतलब आपने खुद ने गलती की है और आप खुद ही उसमें जज बन के बैठे हो, तो कोई भी जज जब गलती करता है तो खुद वो अपने केस में जज नहीं बन सकता. इन शॉर्ट ये बोलना है. नाउ फैक्ट्स. ए ड्राइवर ऑफ अ बी
अ ब्रांच मैनेजर ऑफ अ एबीसी बैंक वाज अ कॉट, क्या बोला है, ए अ ड्राइवर ऑफ अ बी का ड्राइवर है ये, अ ब्रांच मैनेजर ऑफ a ABC company was caught suspecting theft in the bank premises. The bank management instituted an inquiry and made B the inquiry officer. देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो कौन है, ड्राइवर ऑफ अ बी, ड्राइवर ऑफ अ बी, तो बी कौन है, अ ब्रांच मैनेजर, एक ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर कहाँ पर है, एबीसी बैंक में है, उसको एज अ थेफ्ट सस्पेक्ट में पकड़ा गया, ठीक है, इन द बैंक प्रीमाइसेस ओनली, द बैंक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटेड व्हाट, इंक्वायरी अगेंस्ट हिम, एंड वो इंक्वायरी अगेंस्ट हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए सेज एज बी इज अ बैंक मैनेजर, गाइस यहाँ पर एज अ बी इज अ बैंक मैनेजर बोल दिया तो ये यहीं पे नहीं रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रांच मैनेजर बोला है, ठीक है, चलो तो भी हम अगर कंसिडर कर लेते हैं, समटाइम्स हम थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि दैट वुड बी द चांसेस कि ब्रांच जो है वो बैंक है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि एज अ बैंक मैनेजर, चलो ठीक है, नॉट अ जज एंड नॉट अ जज, दिस प्रिंसिपल इज इनएप्लीकेबल, गाइस ये प्रिंसिपल के हिसाब से तो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी सेज since the suspected theft was on a bank premises, the manager is on only competent person to inquire about, hence principle is not applicable। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो थेफ्ट मतलब जिसको चोर समझा जा रहा है वो खुद ही एक मैनेजर है, अब उस बैंक का मैनेजर होने के रिलेशन के अंडर वो जो है एक अथॉरिटी के अंडर है कि वो खुद ही इंक्वायरी कंडक्ट करे, सो इन दैट केस उसको जो है ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल ही नहीं होता, बट ये तो मॉरल थिंकिंग हो गई ना, ये तो प्रोफेशनल वाला एथिक्स हो गया ना, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करना है। चलो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट। नाउ ऑप्शन सी एंड डी रिमेंस हियर, सिंस बी इज एम्प्लॉयर ऑफ ए, क्या बोला है, सिंस बी इज एम्प्लॉयर ऑफ ए, B should not be conducting the inquiry on the basis of given principle। बोला है कि B जो है एम्प्लॉयर ऑफ द A है। अब देखो यहां पर कैसा है, B जो है ना प्रिंसिपल हो गया, इन शॉर्ट ही इज अ प्रिंसिपल एंड A इज अ व्हाट, एजेंट, A इज अ व्हाट, एजेंट, ठीक है। अब A जो है वो क्या हो गया कि ए को एज अ सस्पेक्ट पकड़ा गया थेफ्ट, अब बी जो है उसका प्रिंसिपल है, इनडायरेक्टली बी इज लाइबल फॉर दैट थेफ्ट, बिकॉज ए ने अगर चोरी की है तो उसका प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल हो जाएगा, बिकॉज नाउ ए इज इन अ ड्यूटी, ए इज इन अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन दैट प्रिंसिपल बी वुड बी थेफ्ट, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से यहां पे सी बोला गया। नाउ ऑप्शन डी सेज द प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ theft committed by A was in relation to the car। देखो यहां पे क्या बोला है, अब यहां पे ये बोलते हैं कि दिस प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल, बट कब एप्लीकेबल होगा, ओनली इफ द थेफ्ट कमिटेड बाय A was in relation to the car, मतलब अगर सिर्फ कार में चोरी होती ना तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता, बट दैट्स नॉट द करेक्ट सेंस, बिकॉज यहां पर ए के ऊपर जो केस हुआ, ए चोरी चाहे कहां पर भी कर ले, वो चाहे थेफ्ट कार में करे कि बैंक में करे, क्या फर्क पड़ने वाला है उसको, आखिर वो खुद तो जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता, मतलब खुद इंक्वायरी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो सिंपली दैट वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी चला गया, बचा क्या, ऑप्शन सी, सिंस बी इज द एम्प्लॉयर ऑफ ए एंड बी शुड नॉट बी कंडक्टिंग द इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रिंसिपल। अब यहां पर बी जो है ना वो खुद ये इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता, सो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। Now, question number 5, principle here. Only parliament or a state legislature have a authority to enact laws on their own। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ को इनैक्ट करे। गाइस देखो यहाँ पर इनैक्ट करने के बारे में बोला है, तो सिर्फ इनैक्ट करने के बारे में ही सोचना है आपको। नो लॉ मेड बाय स्टेट कैन टेक अवे अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट। अगेन यहाँ पर फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना, दिस इज द मेन पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फंडामेंटल राइट तो सिक्योर्ड है यहाँ पर, चाहे स्टेट के पास इनैक्टमेंट का कोई भी राइट हो। चलो अब चलते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स बोलते हैं पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज वियोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो है वो बोलते हैं कि ये जो इन्होंने लॉ निकाला है वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट वियोलेट कर रहा है। ऑफ अ ट्रेडर्स, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स फाइल्स अ writ petition challenging the constitutional validity of the statute seeking a relief to quash the statute। अब यहाँ पे क्या बोला,
कि ग्रुप ऑफ लॉयर ने क्या कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर लिया चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the statute seeking the relief to quash the statute further direct parliament to enact new law। गाइस यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि पार्लियामेंट को आप सीधा सीधा डायरेक्ट करो और बोलो कि ये जो है वो नहीं होगा, लॉ को निकाल दे। चलो ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन ए सेज नो रिट वुड लाई अगेंस्ट द पार्लियामेंट as the court has no authority to direct the parliament to enact or री-इनैक्ट अ लॉ। ठीक है, डायरेक्ट करना ये बोला गया, और यहां पे बोला है नो रिट वुड लाई, ये गलत है। नो रिट वुड लाई नहीं, पॉसिबल नहीं है, रिट तो होगा बिकॉज फंडामेंटल राइट तो वियोलेट हुआ, तो फिर रिट तो बनेगा। चलो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन बी सेज द कोर्ट कैन क्वैश एग्जिस्टिंग लॉ इफ इट वियोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। गाइस यहां पे डायरेक्ट पार्लियामेंट बोला हुआ है, सो probably this would not be the answer, but we have to look that कि कहां पर ऑप्शन में और भी कुछ दिया है क्या, या फिर ऐसा दिया है cannot direct, तो somewhere वो भी तो ऑप्शन है, because डायरेक्ट करना इन द सेंस यू आर गिविंग दैट ऑर्डर टू द पार्लियामेंट कि आपको ये नहीं करना है, तो ये तो हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कुड बी द एडवाइजरी और द ऑर्डर, लाइक वो डिसीजन दे सकती है, वो किसी को इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकती, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ऑर्डर दे सकता है। हाँ, अगर वो फॉलो नहीं करता अब उसके अगेंस्ट एक्शन लो, दैट राइट कोर्ट के पास होता है, वो कोर्ट के पास एक राइट है, बट कोई भी कोर्ट ये नहीं कर सकता, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, वो ये चीज नहीं कर सकता कि जाके सीधा सीधा उनको लाइक ऑर्डर दे दे, कंपेल करे, फोर्स करे कि तू ये कर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लीगली अलाउड ही नहीं है। चलो नाउ ऑप्शन सी सेज the court can quash the existing law if it violates the fundamental rights but cannot direct parliament to make a new law। गाइस देखो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया cannot direct parliament to make a new law, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी है टू इनैक्ट द लॉ। गाइस लॉ में कैसा होता है कि आपके पास अगर एक राइट है ना, दैट इज ओनली योर्स राइट, अब उस राइट के साथ कुछ एंसिलरी राइट्स भी आपके पास आ जाते हैं, वो ये होते हैं कि आपको कोई उस राइट के लिए वापस से फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप इनैक्टमेंट करते हो दैट मींस कोई भी आपको क्या ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप लॉ इनैक्ट करो, नया लॉ बनाओ, ये नहीं होता। तो पार्लियामेंट के पास अगर इनैक्टमेंट की राइट्स है तो सिर्फ उसके पास वो राइट है, कोई दूसरे तीसरा आके वहां पे वो ये नहीं बोल सकता कि पार्लियामेंट आप ये नया लॉ बनाओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। वहां पे वो एडवाइजरी बन सकता है, एट द टाइम वो डिसीजन भी दे सकता है, बट दे कैन नॉट कंपेल टू पार्लियामेंट कि भाई आप नया एक्ट बनाओ, ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेटेड। नाउ D says कि none of this तो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन C should be your correct answer. So guys, these are the questions and these are the most important questions guys. So I hope you like the video and next thing is देखो गाइज ये जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस है इसमें प्रिंसिपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल्स को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे टू द वीडियो, कंप्लीट वीडियो में, तो पहले प्रिंसिपल से लेके 5th प्रिंसिपल तक जो प्रिंसिपल्स थे वो ज्यादा करके फंडामेंटल राइट्स को बेस थे। तो फंडामेंटल राइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द परव्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। MHCET लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसको थॉरोली रीड करो। आई एम नॉट सेइंग कि डिप डाइव करो, इन द सेंस रिसर्च करो, पूरा PhD करो उसके अंदर, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सिंपली आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको लैंग्वेज रीड करने के बाद समझ में आनी चाहिए, इतना एटलीस्ट स्टडी करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स करना, जितने भी टॉप पॉइंट्स है लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 6, जितने भी हेडर्स है वो रीड करो, उनकी मीनिंग रीड करो, उनकी जो एग्जैक्ट प्रोविजन दिया हुआ है, एग्जैक्ट आर्टिकल दिया हुआ है उसको रीड करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम टाइम। अगर वो एग्जाम टाइम में जाओगे बहुत हेल्प करेगा। सो गाइज दिस मच इज ऑफ द वीडियो, आई होप यू get something important and you have now that planning and that strategy, that ideas कि कौन से questions आएंगे कौन से नहीं आएंगे, so you can focus on that. Okay guys, so if you want to join the crash course or if you want to join us for the preparation of the MHCET law exam, you can directly connect with us. You can connect with us if you are a Mumbai based. You can directly visit to our centers which are in Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali and Pune coming soon. And if you are not Mumbai based, you can directly join live classes and start preparation with us. So guys, this was of today. Thank you for watching the video.
don't forget to like the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel, hit that bell icon so you can get the notified by our videos. Thank you.